Hi guys, this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967 34256. You may contact us for the best OET coaching, and on the top of it, you can subscribe our channel for the latest and the best videos. So today I'm just going to discuss the thing that we normally do when it is kind of an exam that is about to approach. So normally we discuss the writing task just a day prior. So I'm just going to do the same thing for today as well. I'm going to discuss the writing that is kind of basics of writing. In that writing task, I will try to discuss not only the writing task, but also will discuss the grammar. We'll also discuss how to put the commas. So I will try to do it little different today, but we'll try to make sure that everything goes smooth, nice and easy for you, and you should all be able to learn. So that would be my effort. Yeah. So I'm here starting this thing now. Again, we just had the discussion when it comes to English. The most important thing I always say is that when you do OET writing or any other writing, it is very important to write this thing. So when you start your writing, so on the question paper, please write second form. Then you write was plus third form. It is very important. So on your examination day, that is what I am expecting that you all should do. On the examination day, you should write second form, was plus third form. Then you should write has plus third form, and then you should write has been third form. If you understand this small thing, this small grammar, then in OET at least I can guarantee you. Otherwise, in your reading also, listening also, this thing will help you to understand what grammar is. So it will help you not only in OET writing, it will help you in reading and listening as well. But to tell you how to do this, you need to have a patience of just 15 minutes. In 15 minutes, you would have clarification for everything. So this is the most important thing I want to teach today. This, yes. So you should make a chart in your exam. Whenever you will have your exam, it is very important to mention this thing. So you say past and you write it today. So this is the chart I want you to create when you are sitting in your exam, taking your OET writing task. If you do this thing, there are very high chances, very high chances that you will pass. The chances will be very high, that I assure you. So what I mean by this statement, I will write it now. So most of the times when it comes to doctors, it is almost 99.9% they are going to have a visit letter. Means there would be dates. On August 2019, this happened. In December 2019, this happened. Then there would be last date, January 2022 or whatever. So the last date is always today's date. Again, I will write it down for you. Last date is today's date. Today's date is last date of whatever has been given. So now what you need to do, first of all, please try and understand when there is any visit letter or letter of the dates. Today date is the most important thing. The maximum data that you cover in OET writing should come from last date, because last date talks about the current condition of the patient. जब आपको ये पता है कि पेशेंट की करंट कंडीशन क्या है, आज की कंडीशन क्या है, उसी के बेस पे आप पेशेंट को रेफर करते हो. अगर कंडीशन इंप्रूव हुई है तो पेशेंट को आप फॉलोअप केयर के लिए रेफर करते हो, तो उसे कह देते हैं फॉलोअप लेटर, या उसे कह देते हैं काइंड ऑफ फॉलोअप केयर वाला लेटर. जब पेशेंट आपसे ठीक नहीं हो रहा है, सपोज ही वॉज कमिंग टू योर क्लिनिक और पेशेंट ठीक ही नहीं हो रहा है, देन आप आज की डेट को बहुत इंपॉर्टेंट डेट लिखते हो, और आज की डेट में ये पता लगता है कि आज ऐसा क्या हुआ कि पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए आप किसी स्पेशलिस्ट के पास पेशेंट को रेफर कर रहे हो. सो दैट इज वाई टुडे डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ पेशेंट इज गेटिंग बेटर, देन ही विल गो फॉर फॉलोअप केयर. इफ पेशेंट इज नॉट गेटिंग बेटर और आज की डेट में वो उसकी कंडीशन वर्स होती जा रही है, so obviously you will refer the patient. Obviously you will refer the patient. किस कहाँ पे रेफर करोगे? स्पेशलिस्ट के पास. ओके, so I'm writing everything down here. So normally जो डॉक्टर्स को लेटर आता है, और जो कल लेटर आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि 2-3 बार लगातार डिस्चार्ज बैक और रेफर्ड बैक लेटर आ गया है, तो विजिट लेटर की
आज की जो करंट कंडीशन ऑफ द पेशेंट है, दैट इज आवर पर्पस। वही तो पर्पस है। अगर मान लो आज पेशेंट को बहुत सारा पेन है और उसका पेन मेडिकेशंस के बाद भी इट्स नॉट गेटिंग सबसाइडेड, तो दिस इज द मेन रीजन व्हाई यू आर रेफरिंग द पेशेंट। आपके पास पेशेंट चेस्ट पेन से लगातार आ रहा था, आपने मेडिकेशन दी, लेकिन फिर जब चेस्ट पेन बाय चांस बढ़ गया या आया ही बहुत ज्यादा चेस्ट पेन के साथ, आपने मेडिकेशन दी तब भी वो इम्प्रूव नहीं किया, तो आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई और आज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पता लगा है या ईसीजी में पता लगा है कि उसकी हार्ट की एबनॉर्मल रिदम्स हैं। तो यही तो पर्पस ऑफ द लेटर है, इसीलिए तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेज रहे हो। अगर पेशेंट आपके पास लगातार आ रहा है, उसकी लेग में पेन है एंड द पेन इज नॉट इम्प्रूविंग, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट को लेटर लिख रहे हो कि दिस पेशेंट रिक्वायर्स योर एक्सपर्टीज बिकॉज उसका पेन नहीं जा रहा है। और मे बी यू आर सेंडिंग टू एन एमडी डॉक्टर कि आप देख लो इसको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। मींस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टुडेज की डेट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो फर्स्ट उसी को, और यही टुडे की डेट ही फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ, चार ही तो पैराग्राफ होते हैं, फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ सिर्फ टुडे की डेट कवर करती है। इतनी सारी बातों से मैं क्या कहना चाहता था, that today's date is the most important thing in OET letter. Today's date is the most important thing. Now I will write it. This letter, now I will use the grammar and everything. This letter is being written regarding Mr. X या फिर Mrs. Y, जो भी पेशेंट होगा, regarding Mr. X who, again टुडे डेट में हमने क्या लिखा है, अगर एक्टिव है तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म, पैसिव है तो हैज बीन थर्ड फॉर्म, तो हमारे द्वारा डायग्नोज किया गया है। सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद जो भी आज की प्रॉब्लम है, जैसे मैंने कहा सिवियर लेग पेन, जैसे मैंने कहा सिवियर चेस्ट पेन। अगर आपने डायग्नोसिस ही कर लिया तो यहाँ पे डिजीज का नाम आएगा, तो हम डिजीज का डायग्नोज के साथ, सॉरी डायग्नोज के साथ कभी भी सिवियर लेग पेन नहीं जाएगा, डायग्नोसिस के साथ डिजीज आना चाहिए। तो अगर बाय चांस सिर्फ लेग पेन दे रखो तो आप उस वर्ड को लिखोगे असेस्ड विद सिवियर चेस्ट पेन। लेकिन अगर वहां पे आपको डायग्नोसिस वर्ड दिया है तो आप लिखोगे हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद। बस इतना सा लिखना है ओईटी में और आप पास हो जाओगे। सिर्फ इतना सा लिखने से आप पास हो जाओगे। हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ईसीजी रिपोर्ट्स, जो भी वहां पे दिया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ईसीजी रिपोर्ट्स। फिर आप कार्डियोलॉजिस्ट को कहते हो देयरफॉर ही इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज ऑन अर्जेंट बेसिस। सो दैट डिपेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओईटी लेटर में ये होता है कि आप लेटर किसको लिख रहे हो। तो आप जिसको भी लेटर लिखते हो आप उसके हिसाब से लेटर लिख के बताते हो। कार्डियोलॉजिस्ट को आपको लेटर लिखना है तो वहां पे लिखा है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो आपने लिख दिया मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर ये लेटर फिजियोथेरेपिस्ट थेरेपिस्ट के लिए होता तो हु हैज बीन डायग्नोज्ड विद मल्टीपल स्क्लेरोसिस या कुछ भी, मतलब अकॉर्डिंग टू द पर्सन आप जो भी आपको आज की डिजीज दी होगी वो आप रखोगे। अब इसमें द मेन थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस वाज कोमास। कोमास हमेशा कनेक्टर से पहले आते हैं, हु से पहले कोमा, हु से पहले कोमा, पर फुल स्टॉप के बाद देयरफॉर के बाद, देयरफॉर ही इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज ऑन अर्जेंट बेसिस। अब पर्पस क्या लेटर का, ये कि उसको प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम होती है वो पर्पस होता है। फिर पर्पस को लिखने के बाद हम कहते हैं इसलिए देयरफॉर वी आर सेंडिंग द पेशेंट अंडर योर एक्सपर्टीज। बस इतना सा लिखना है और आप पास, पर्पस क्लियर। इससे ज्यादा पर्पस को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं दी हो तो ऑन द बेसिस ऑफ हिज करंट साइंस एंड सिम्टम, जो भी करंट साइंस एंड सिम्टम्स हैं उनको पूरा नहीं लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में बस ये लिखना है करंट साइंस ऑफ सिम्टम्स के हिसाब से उसको हमें ये लग रहा है। तो वहां पे अगर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है तो क्वेश्चन मार्क के लिए आप वर्ड यूज करोगे सस्पेक्टेड विद। तो अगर पेशेंट सस्पेक्टेड है तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ही इज बीइंग रेफर्ड अंडर योर एक्सपर्टीज ऑन अर्जेंट बेसिस फॉर डेफिनेटिव डायग्नोसिस, क्योंकि अभी सस्पेक्टेड है, एंड फर्दर मैनेजमेंट। सो बस ओईटी इज ऑल अ प्रैक्टिकल टेस्ट एंड राइटिंग इज द इजीएस्ट मॉड्यूल इफ यू फॉलो आवर वीडियोस।
सो प्लीज एंड तक सुनना, बिकॉज एंड में मैं आपको रेफर्ड बैक और डिस्चार्ज बैक लेटर भी बताऊंगा. सो दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु हैज बीन सस्पेक्टेड विद सीवियर चेस्ट पेन या हैज बीन डायग्नोज्ड विद. अगर सस्पेक्टेड है तो ये वाली लाइन आएगी नहीं, तो इसको हटा देते हैं. जो भी आज की बीमारी दी होगी, वट एवर द कंडीशन वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हिज, therefore he is being referred under your own urgent basis for definitive diagnosis and further management. That's it. You are all good to pass, even score 350. इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है फर्स्ट पैराग्राफ. अगर यहाँ पे दे रखा है कि सर वहां पे डायग्नोसिस दे ही नहीं रखी थी, तो अगेन एक्सप्लेनिंग, तो आप लिखोगे हु हैज बीन असेस्ड विद जो भी आज की प्रॉब्लम थी, सीवियर चेस्ट पेन. दैट्स इट. मेन चीज लिखनी है बस. और ग्रामर क्या यूज हुई है, अगेन टुडे वाला पैसिव वॉइस, हमारे द्वारा, हॉस्पिटल के द्वारा असेस किया गया है, बाय अस, पैसिव वॉइस. तो हु हैज बीन असेस्ड, दैट इज द ओनली ग्रामर यू यूज. देन फिर देन यू टॉक अबाउट द सोशल हिस्ट्री एंड मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट. सो मिस्टर एक्स, अब अकॉर्डिंग टू द लेटर जो भी आपको सोशल हिस्ट्री, रेलेवेंट सोशल हिस्ट्री, मिस्टर एक्स is a known case of diabetes and is taking anti-diabetic diet and medications. जो ये भी डोंट राइट एनीथिंग फ्रॉम यूर सेल्फ, ये वहां पे दिया होगा जो भी उसको प्रॉब्लम होगी. अगर इसके साथ साथ उसको हाइपरटेंशन भी है, इज, अब देखो आपको जो कनेक्टर भी सिखा रहा हूं मैं साथ साथ, कि ऐसे बार बार नहीं लिखना होता, फर्दर अलोंग विद दिस कभी कभार यूज करते हैं, पर अब जैसे यहाँ पे जरूरत नहीं है. ही इज हैविंग हाइपरटेंशन एज वेल. ये एज वेल आपको, आपकी कनेक्टर का काम क्या होता है, आपकी राइटिंग को फ्लुएंट करना, तो ये एज वेल ये भी है. कनेक्टर फॉर विच ही, यहाँ पे सिंपल लिखा, ही ही इज अ नोन केस ऑफ डायबिटीज एंड इज टेकिंग दिस, सिंपल एंड कनेक्टर लगाया. ही इज हैविंग हाइपरटेंशन एज वेल फॉर विच ही टेक्स एंटी हाइपरटेंसिव. सो हाउ सिंपल. अब उसकी सोशल हिस्ट्री में इफ देर इज एनीथिंग इंपॉर्टेंट, तो हिज सोशल हिस्ट्री reveals that he is reveals word, his social history reveals that he is whatever, जो भी आप लिखना चाहते हो, he is a smoker and smokes 50 cigarettes a day or 20 cigarettes a day, whatever, and he drinks as well. तो ये जो छोटा सा एज वेल है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और कॉमा कहाँ लगा है, कनेक्टर, कनेक्टर से पहले, फॉर विच से पहले. लेकिन फॉर विच एक ऐसा कनेक्टर है जिसके दोनों तरफ कॉमा लगता है. सो ये आपको ऐसे याद करना है. इसका मतलब क्या होता है, उसको हाइपरटेंशन है जिसके लिए, फॉर विच ही इज टेकिंग दिस. अगर आप इसको चेंज भी कर दो, ही इज अ नोन केस ऑफ डायबिटीज फॉर विच he is taking anti-diabetic medications, he is having hypertension as well and he takes hypertensive. तो ये नहीं है कि आपको ये रट्टा मारना है, ये मैं आपको एंड का ऑल्टरनेटिव बता रहा हूं कि जिसके लिए वो ये कर रहा है. सो सेकंड पैराग्राफ वुड बी दैट सिंपल. थर्ड पैराग्राफ, नाउ व्हेन इट कम्स टू विजिट लेटर, द बेस्ट एंड द इजीएस्ट मेथड, गो क्रोनोलॉजिकली. क्रोनोलॉजिकली मतलब टाइम के हिसाब से. सो जो भी फर्स्ट डेट दी है, ऑन 28 जनवरी 1987, द पेशेंट, कोमा कहाँ पे लगाना है, 28 जनवरी के बाद, और जे कैपिटल, ये छोटा नहीं करना है, जे को हमेशा कैपिटल, किसी भी मंथ का नाम और पेशेंट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करना है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ऑन 28 जनवरी 1987 द पेशेंट हैड क्यों लिखा, हैड क्यों लिखा, हैड क्यों लिखा, हैड इसलिए लिखा क्योंकि पेशेंट को एक्टिव में था अपने आप. अब पास्ट टेंस शुरू हो गया, तो जब तक प्रेजेंट था फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने ये यूज किया, इन दोनों में से एक, एक्टिव या पैसिव देख के. अब पास्ट चल रहा है, अब मुझे ये ध्यान रखना है सेकंड या वॉज प्लस थर्ड फॉर्म. जो काम हमारे द्वारा होगा वो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, जो काम अपने आप होगा यानी कि सिम्टम्स पेशेंट को अपने आप होंगे, ऑन 28 जनवरी द पेशेंट हैड, इसकी जगह आप लिख सकते हो द पेशेंट सफर्ड फ्रॉम.
इसकी जगह आप ऐसे लिख सकते हो द पेशेंट कंप्लेंट हो। तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। तो ये सब एक्टिव है। देखो इनमें से किसी वर्ड के साथ कभी भी वॉज नहीं लगेगा। और हमेशा याद रखना है, कंप्लेंट के साथ हमेशा ऑफ लगेगा, सफर्ड के साथ हमेशा फ्रॉम। ये सब आपको याद रखना है। प्लीज टेक कॉपी एंड पेन, राइट इट अलोंग विद मी, देन राइट इट अगेन। देन एक कोई भी एक लेटर को अटेम्प्ट करके देखो, आपको ओईटी लेटर कभी मुश्किल नहीं लगेगा। बस थोड़ा सा एफर्ट और थोड़ा सा ध्यान। ओईटी लेट ओईटी राइटिंग इज द इजीएस्ट मॉड्यूल ऑफ ऑल। वैसे तो सभी इजी हैं, बट राइटिंग इज द इजीएस्ट। एक्टिव का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें क्या आएंगे, सिम्टम्स। तो आप पेशेंट के सिम्टम्स बताओगे। अब मान लो सिम्टम्स, मान लो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। इसके साथ साथ दो तीन सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आराम से फुल स्टॉप। ये नहीं कि ए बी सी डी ई एंड एफ, ये गड़बड़ हो जाएगा। इतने सारे सिम्टम्स इकट्ठे नहीं लिख सकते। तो आप इसको ब्रेक करोगे और लिखोगे ए बी एंड सी, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। और कोमा भी कॉपी करने हैं। याद कर लो कहाँ कहाँ कोमा लगते हैं। फुल स्टॉप, अलोंग विद दैट ही वाज ऑल्सो हैविंग। तो यहाँ पे सिर्फ टेंस को इसलिए चेंज कर रहे हैं, नहीं तो आप इनमें से कुछ भी लिख लिख सकते हो। ही ऑल्सो हैड, ये कोई रट्टा नहीं है। ही ऑल्सो हैड भी लिख सकते हो, ही ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम, ही ऑल्सो कंप्लेन्ड हो। लेकिन थोड़ा सा चेंज करने के लिए ही वाज ऑल्सो हैविंग। तो ये आप बाकी सिम्टम्स लिख दोगे, डी ई एंड एफ। मतलब कभी भी ओईटी को कॉम्प्लेक्स नहीं करना। जहां पे भी आपको लग रहा है आपकी लाइन बड़ी हो रही है और कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, उसको आसान लिखना है। दैट इज द ओनली मोटो। फिर जब भी कोई अपने सिम्टम बता देता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमेशा एग्जामिनेशन होती है। तो हम कहेंगे ऑन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन किसके द्वारा होगी, सिर्फ एक सिम्टम्स ऐसी चीज होती है जो एक्टिव में होते हैं। अब सब कुछ पैसिव चलेगा। पैसिव का मतलब वॉज प्लस थर्ड फॉर्म। तो ये क्वेश्चन पेपर पे जब जाते ही क्वेश्चन पेपर पे लिखना है, आंसर शीट पे नहीं लिखना। जाते ही क्वेश्चन पेपर पे लिखना है, और क्वेश्चन पेपर पे जैसे ही लिखोगे वॉज प्लस थर्ड फॉर्म, उसको फॉलो करना है। ऑन एग्जामिनेशन के बाद कोमा, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन एग्जामिनेशन ही वाज फाउंड विद, ये हमारे द्वारा पाया गया है, तो जो भी उसके साइंस हैं। सिम्टम्स, साइंस, इसके बेस पे क्या होता है, इसके बेस पे होता है डायग्नोसिस या सस्पेक्टेड। सो ऑन एग्जामिनेशन ही वाज फाउंड विद, सिम्टम्स आ गए, ऑन एग्जामिनेशन ही वाज फाउंड विद दिस साइन। फिर आराम से देयरफॉर ही वाज सस्पेक्टेड विद, जो भी आप लिखना चाहते हो, जो भी वहां पे दिया है 28 को। अगर क्वेश्चन मार्क दिया है तो सस्पेक्टेड विद, और अगर असेस दिया है तो असेस्ड विद, और अगर डायग्नोज दिया है तो डायग्नोज विद, जो भी वहां पे दिया। इतना सिंपल है ओईटी का पैटर्न, क्योंकि पेशेंट के साथ और कुछ हो ही नहीं सकता। सिम्टम बताएगा, कोई भी सिम्टम और साइन जो आपको समझ नहीं आ रहा वो मत लिखो। अगर लेटर आपको बहुत बड़ा है, तो इन्हीं विजिट में से आप लेटर कम कर सकते हो। मान लो कि पहली आपको 5-6 विजिट्स इकट्ठी आ गई, अब आपको पता है वर्ड काउंट कंट्रोल में नहीं आएगा, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखो। ऑन फर्स्ट 2 विजिट्स इकट्ठा कर दो। ऑन फर्स्ट 2 विजिट्स, तो इकट्ठे कर दो सिम्टम्स। ऑन फर्स्ट 2 विजिट्स the patient had this, and बाकी सब सेम। he was found with this, therefore he was diagnosed with this, for which he was given हमारे द्वारा। अब for which फिजियोथेरेपी was given, जिसके लिए हमने उसको फिजियोथेरेपी दी, या हाइड्रोथेरेपी दी, या पैरासीटामोल दी, वो लिख के पैरासीटामोल was given। Done। ऐसे ही फिर नेक्स्ट विजिट। अब मान लो बाकी 2 विजिट्स, ऑन सब्जीक्वेंट विजिट्स। अब विजिट्स का काउंट मत लिखो ना, 2 हैं 3 हैं। अगर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेटर आया है तो मत लिखो, सब कुछ इकट्ठा कर दो। ऑन सब्जीक्वेंट विजिट्स हिज कंडीशन गोट वर्स, तो पहले से भी वर्स होगी। ऑन सब्जीक्वेंट विजिट्स कंडीशन गोट वर्स, तो हमने कुछ किया होगा। सो दिस, जो भी आपने किया, सो दिस एंड दिस वाज डन। तो अगेन पैसिव वॉइस, तो हम हमारे द्वारा ये
सो इन्वेस्टिगेशंस वर डन। अगर पेशेंट को हम मेडिकेशन पिछली विजिट में देंगे, इस विजिट में मेडिकेशन दी, वो ठीक नहीं हुआ, तो इन्वेस्टिगेशंस वर एडवाइज्ड। तो हमने कहा कि प्लीज पेशेंट आप एडवाइस को इन्वेस्टिगेशन दी। अगर ये सिर्फ एक दो लाइनें हैं तो इसको इकट्ठा ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इकट्ठा कर दो उन सब ऐसे थोड़ी इकट्ठा नहीं कर सकते, इकट्ठा कर दिया। अगर ये ज्यादा लाइनें हैं तो इसको तोड़ दो, यहाँ पे 3-4 लाइनें फिट हो जाएंगी। और फिर लास्ट पैराग्राफ को अलग से बना दो टुडे, और जैसे ही टुडे लिखो फिर वापस अपने ऊपर पे आ जाओ, हैज बीन थर्ड फॉर्म और हैज थर्ड फॉर्म। तो इस चार्ट को जरूर बनाना है टुडे। अब अब यहाँ पे सिम्टम्स और साइंस जो टुडे डेट के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन सबको लिखना है, ज्यादा से ज्यादा लिखना है। कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड है उसे छोड़ना है। लीव एनीथिंग दैट इज कॉम्प्लिकेटेड और नॉट रिलेटेड टू द पर्सन हुम वी आर राइटिंग। सपोज हम गायनी को लेटर लिख रहे हैं और वहां पे लिखा हुआ है कि पेशेंट अपने भाई के साथ रहता है या इसके साथ रहता है, तो मत लिखो। वही चीज लिखो जो इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है। टुडे द पेशेंट हैज प्रेजेंटेड, अपने आप आया है। अगर, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ ग्रामर की, अगर वो पेशेंट अपने आप आने की हालत में नहीं है, अनकॉन्शियस है, या फ्रैक्चर केस है, या एक्सीडेंट हुआ है, या छोटा बेबी है, तो यहीं पे ग्रामर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। टुडे द पेशेंट हैज बीन प्रेजेंटेड, इस बात को फिर ध्यान से सुन लो। अगर पेशेंट अपने आप आया है तो पेशेंट हैज प्रेजेंटेड। अगर पेशेंट मेंटल साइकोलॉजिकली एक्यूट मैनिक एपिसोड में है, बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है, वो किसी के द्वारा लाया गया है, तो किसी के द्वारा मतलब पैसिव वॉइस, टुडे फिर वहां पे आ जाएगा। इसी चीज के पॉइंट्स हैं, टुडे द पेशेंट हैज बीन प्रेजेंटेड विद। सर अगर पास्ट में किसी के द्वारा लाया हो तो हम पास्ट में भी लिख देंगे, टू ऑन 28 ऑन फर्स्ट टू विजिट ही वाज प्रेजेंटेड। बस ये जब पेशेंट वॉज प्रेजेंटेड तो ये अपने आप ही पैसिव, यानी किसी ना किसी के द्वारा, बाय हर मदर, जो भी दिया हुआ है। सो टुडे द पेशेंट वॉज प्रेजेंटेड, अगर बाय वर्ड नहीं भी लिखोगे तो भी ये पैसिव वॉइस ही है, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म। वॉज प्लस थर्ड का मतलब यही है कि किसी के द्वारा है, पैसिव है पक्का। जब वो अपने आप आया है तो आप लिखते हो पेशेंट प्रेजेंटेड, या पेशेंट विजिटेड, या पेशेंट केम विद चीफ कंप्लेंट ऑफ, या पेशेंट हैड दिस एंड दिस प्रॉब्लम, या पेशेंट सफर्ड फ्रॉम। ऐसे कुछ भी वर्ड्स आप लिख सकते हो यहाँ पे जो मैंने पहले लिखे थे। आई होप यू ऑल, वेरी इजी यार, प्लीज जस्ट मेंटेन द फोकस। पेंसिल और पेपर लो, कभी ग्रामर में दिक्कत नहीं आएगी। कोमास को भी अच्छे से नोट करो, ऑन सब्सिक्वेंट विजिट्स के बाद कोमा, इस विजिट के बाद कोमा। बाकी तो अलोंग विद दैट के बाद कोमा आना ही है, एग्जामिनेशन के बाद कोमा आना ही है, देयरफॉर के बाद। तो फुल स्टॉप के बाद जो भी आप एक तरीके से ऑन एग्जामिनेशन जो भी फ्लो के लिए आप वर्ड्स यूज करते हो, इनको मैं कनेक्टर नहीं कह सकता। कनेक्टर तो वो होता है जो दो लाइनों को जोड़े, जैसे कि फॉर विच, जैसे कि हु, यहाँ पे दो लाइनों को जोड़ रहा है। इनको मैं कनेक्टर्स नहीं बोलता, अलोंग विद दैट को, ये कनेक्टर नहीं है, ऑन एग्जामिनेशन कनेक्टर नहीं है। देयरफॉर, अगर ये इसको जोड़ता तो मैं इसे बोलता देयरफॉर कनेक्टर है, फिर टी को मैं छोटा करता। लेकिन यहाँ पे मैं देयरफॉर सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूँ, इसलिए के लिए, तो उसके बाद को हाउस, दैट इज सिंपल। टुडे द पेशेंट हैज बीन प्रेजेंटेड, अगर अपने आप आया है तो टुडे द पेशेंट हैज प्रेजेंटेड। तो प्लीज इस चार्ट को देखते रहना पेपर में, अपने आप आया है या किसी के द्वारा, टुडे द पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद दिस एंड दिस थिंग। ऑन एग्जामिनेशन आप पहले यूज कर चुके हो तो आप लिखोगे ऑन बीइंग एग्जामिन्ड, थोड़ा सा चेंज करने के लिए, ही हैज बीन फाउंड विद, जो भी आपको दिया। बस क्या किया, वॉज फाउंड का, वॉज फाउंड का, देखो क्या किया, वॉज फाउंड का हैज बीन फाउंड कर दिया, बस ये याद कर लो ग्रामर में, ही हैज बीन फाउंड विद, सेम जो वहां पे दिया। अब यहाँ पे सिर्फ ग्रामर चेंज करने के लिए, ही हैज बीन फाउंड विद, यहाँ पे साइंस लिखोगे सिर्फ चेंज करने के लिए, विच मेक्स हिम अ सस्पेक्टेड। अगर वहां पे क्वेश्चन मार्क दिया है, विच मेक्स हिम अ सस्पेक्टेड केस ऑफ दिस, कोमा लगा के, कनेक्टर लगा के, यहाँ पे सिम्टम साइंस लिखे, ये उसके ये सिम्टम्स है, यहाँ पे सिम्टम्स, यहाँ पे साइन, विच मेक्स हिम अ सस्पेक्टेड केस ऑफ। अगर सर सस्पेक्टेड नहीं है तो विच मेक्स हिम अ केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इंफाक्शन।
Therefore, your expertise is highly required. That's it. ये ओईटी का लेटर है बस। टोटल टाइम हुआ है हमें बात करते हुए 20 मिनट्स के आसपास इस लेटर को लिखते हुए, और 20 मिनट्स में ओईटी का लेटर लिखा जाता है। प्रॉब्लम क्या आती है जब आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही? प्लीज, अगर बिल्कुल समझ नहीं आ रही तो छोड़ दो। अगर थोड़ी बहुत समझ आ रही है तो उसको सिंप्लीफाई करके सोचो कि मैं सबसे आसान तरीके से इस लैंग्वेज में कैसे लिख सकती हूँ। अगर आप इस लैंग्वेज में नहीं लिख पा रहे तो उस लाइन को छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, आप पास हो जाओगे। सिंपल, प्लीज। एज प्रोमिस्ड। अब मान लो डिस्चार्ज बैक लेटर या रेफर्ड बैक लेटर क्या होता है? रेफर्ड बैक लेटर होता है पेशेंट जीपी के पास से मेरे पास आया, मैं नर्स हूँ कार्डियोलॉजिस्ट के पास, और अगर आप डॉक्टर हो तो आप खुद ही कार्डियोलॉजिस्ट हो, अगर मेडिसिन में लेटर आया तो आप खुद ही कार्डियोलॉजिस्ट हो। तो जीपी ने आपके पास पेशेंट को भेजा, और आप वापस जीपी को पेशेंट भेज रहे हो कि अब ये बच गया है, इसको फॉलो अप केयर तुम देना क्योंकि ये तुम्हारा पेशेंट है। तो क्या करोगे इस लेटर में? बस दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु was referred to our हॉस्पिटल ड्यू टू जो भी प्रॉब्लम थी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या ड्यू टू दिस जो भी आपको दिया था। तो मैंने क्या चेंज किया? दिस लेटर इज बिंग रिटन रिगार्डिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट पद, यूर पेशेंट। तो जैसे ही आप यूर पेशेंट लिखते हो तो रेफर्ड बैक वाला लेटर पूरा हो जाता है कि आपका पेशेंट है। तो मैं जीपी को कह रहा हूँ कार्डियोलॉजिस्ट, या फिर कार्डियोलॉजिस्ट का नर्स, या फिर ऑर्थोपेडिशियन का नर्स, या फिर डेंटल नर्स अगर डेंटिस्ट के पास आया है, तो मैं कहता हूँ दिस लेटर इज बिंग रिटन रिगार्डिंग योर पेशेंट मिस्टर एक्स। तो मैं जीपी को कहता हूँ आपका ही तो पेशेंट है, हु वाज रेफर्ड टू अवर हॉस्पिटल ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। बस। फिर आप कहते हो, फिर आपने पेशेंट का इलाज किया, तो आप कहते हो आफ्टर ट्रीटमेंट, हमेशा आफ्टर ट्रीटमेंट ही इज बेटर, सो ही इज बीइंग डिस्चार्ज। तो ये लेटर एक तरह से आपके कार्डियक यूनिट में आया है तो आप लिखोगे डिस्चार्ज। अगर डेंटल क्लिनिक में आया है तो आप एडमिट तो कर नहीं सकते, तो उसमें आप क्या लिखोगे? हु वाज रेफर्ड टू अवर डेंटल क्लिनिक। कुछ भी आ सकता है यार ओईटी में, या फिजियोथेरेपी क्लिनिक। हु वाज ड्यू टू दिस थिंग आफ्टर ट्रीटमेंट ही इज बेटर, ही इज बेटर। अगर क्लिनिक में आया तो आप डिस्चार्ज वर्ड लिख नहीं सकते, तो आप लिखोगे ही इज बेटर। अब ये मेन पर्पस, बट ही स्टिल नीड्स फॉलो अप केयर। अगर डेंटल क्लिनिक है तो वो आपको मॉनिटर करने का आएगा, तो क्योंकि डेंटल क्लिनिक में जीपी तो कुछ कर नहीं सकता, तो आप बस ये कहोगे बट ही स्टिल नीड्स ऑब्जर्वेशन। मींस लेटर के हिसाब से आप डाटा को चेंज करते हो, क्योंकि एक बार अभी पिछली लास्ट 2 बारियों में डेंटल के ऊपर भी लेटर आया है। तो उस केस में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर डेंटल का लेटर हो तो कंफ्यूज नहीं होना। बस यूर पेशेंट हु वाज रेफर्ड टू अवर डेंटल क्लिनिक आफ्टर ट्रीटमेंट बट ही स्टिल नीड्स ऑब्जर्वेशन, और बीइंग हिज जीपी, और उसके जीपी के होने, क्योंकि आप उसके जीपी हो, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हिम फॉलो अप केयर। मतलब पैटर्न पर्पस बताना है। तो जीपी ने आपके डेंटल क्लिनिक पे पेशेंट भेजा था, आपने डेंटल क्लिनिक पे ट्रीटमेंट दिया, अब वो बेटर हो गया है, ये पर्पस है। ये बट ही लगाना पड़ेगा, बट को ज्यादा से ज्यादा अच्छा लिखना चाहते हो तो हाउ एवर के दोनों तरफ कोमा, बट के एक तरफ कोमा, कनेक्टर से पहले तो कोमा आना ही आना है, हाउ एवर के बाद भी लग जाता है। हाउ एवर ही स्टिल नीड्स, तो ये आपका मेन पर्पस होता है कि जीपी के पास इसलिए भेज रहे हो, हाउ एवर ही स्टिल नीड्स ऑब्जर्वेशन बीइंग हिज जीपी यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड हिम, या प्रोवाइड, या यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक केयर ऑफ हिम। ऑब्जर्वेशन के केस में बिल्कुल सिंपल लिखना है, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स, दैट इज द ओनली थिंग। बस आपका ये लेटर पूरा हो जाएगा। ऐसे केस में जब रेफर्ड बैक और डिस्चार्ज बैक लेटर होगा, जीपी को लेटर लिख रहे हो तो जीपी को उसकी सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री पता होगी, तो ये गायब हो जाएगा। सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री का पैराग्राफ नहीं आएगा। ऐसे लेटर्स में जान के आपको सोशल हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री ज्यादा दी होगी, तो प्लीज उसके ट्रैप में नहीं फंसना। आर यू ऑल गेटिंग माई फोन? सॉरी, आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट?
बिल्कुल, और सबसे पहले पेपर में ये लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट। I hope you all have understood. Now, please take your copy, so-called notebooks, pencil, your rubbers, so-called erasers. Please pick them up, copy paste करो और अलग अलग लेटर्स को ट्राई करो और पैसिव और एक्टिव को मेंटेन रखो। इसके अलावा एक ही लेटर होता है जो थोड़ा सा अलग होता है, डिस्चार्ज लेटर, नॉर्मल डिस्चार्ज लेटर। उसमें क्या होता है, डिस्चार्ज प्लान। डिस्चार्ज प्लान का मतलब ये है कि पेशेंट आया, ठीक हो गया है, आप उसे डिस्चार्ज कर रहे हो, लेकिन अब उसे फॉलो अप केयर चाहिए। तो ऐसा लेटर मेजरली कम्युनिटी नर्स को आता है और सोशल वर्कर को आता है, थोड़े से चांसेस इसके भी हैं। तो इस लेटर में जो पर्पस होता है वो डिस्चार्ज प्लान होता है। तो डिस्चार्ज प्लान से आपको पता लग जाएगा कि ये फॉलो अप केयर है या क्या है। तो ऐसे लेटर में लिखते हैं, प्लीज नोटबुक से नोट करो, दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल ड्यू टू दिस प्रॉब्लम। After treatment, he is better, so he is being discharged. But he needs follow-up care, hence is being referred to you. तो सोशल वर्कर को या कम्युनिटी नर्स को कह रहे हैं, he is better, but he needs follow-up care, hence he is being referred to you. तो बिल्कुल डिस्चार्ज बैक वाला लेटर ही होता है। बस यहाँ पे ये नहीं लिखते दिस लेटर इज बीइंग रिटन रिगार्डिंग यूर पेशेंट, बस यूर पेशेंट नहीं लिखते। और ये लास्ट में ये नहीं लिखते कि बीइंग हिज जीपी, क्योंकि आप सोशल वर्कर या उसको लेटर लिखते। सो दिस इज प्रिटी मच ओईटी। ओईटी में बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी सी समझ, पर्पस में सिर्फ छोटा छोटा लिखना होता है। जैसे अगर यही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कम्युनिटी नर्स को लेटर होता और डिस्चार्ज वाला होता, दिस लेटर इज बिंग रिटर्न रिगार्डिंग मिस्टर एक्स हु वाज एडमिटेड टू, क्योंकि डिस्चार्ज हुआ है तो एडमिट भी होगा, हु वाज एडमिटेड टू अवर हॉस्पिटल ड्यू टू दिस थिंग, बाकी सब कुछ सेम। आफ्टर ट्रीटमेंट हाउएवर ही स्टिल नीड्स फॉलो अप केयर। Therefore, he is being referred to. देयर फोर दो बारी यूज हो जाता है, क्योंकि ओईटी कहता है कि डोंट यूज हैंस। तो आप 10 यूज कर सकते हो मैक्सिमम एक बार, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में मत करना, मतलब लास्ट में यहाँ पे देयर फोर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे कर देना, थस योर एक्सपर्टीज इज हाईली रिक्वायर्ड, दैट्स इट। So that is how simple OET writing is. This is the only grammar that would be used when it comes to OET letter. And especially in the case of doctors, most of the times it would be visit letter only. Please try to write it. Again, I'm saying writing is very important. और अब अपने आप मत लिखो। अब आपका मन क्या करेगा, मैं बिना देखे लिखता हूँ, एक बार देख के लिखना पड़ेगा, सिर्फ एक बार देख के लिखना पड़ेगा, उसके बाद अपने आप लिखो, आप लिख पाओगे। लेकिन ये प्रेजेंट में ही मौका होता है एक बार देखने से, और अगर 2 बार देख के लिखोगे तो और भी बेटर है, आपको कॉमास दिखाई देंगे, आपको ग्रामर दिखाई देगी, फिर आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा इसको। तो अगर आप 1 या 2 बार अच्छे से आज नहीं देखोगे तो बार बार देखना पड़ेगा, इसलिए बार बार को अवॉइड करने के लिए आज ही देखना सबसे अच्छा है। सो दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट। Our contact number again is 76967 34256. Thank you, and subscribe our channel if you have not. Thank you.